ટક ટક કરી આગળ. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. હું છું ઓજી મેડમ, સાયના ક્લાસીસ યુટ્યુબ ફેમિલીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી ગાલા અસાઇનમેન્ટનું જે સોલ્યુશન છે, પ્રશ્નપત્ર 5. બરાબર, આજે આપણે વિભાગ સી અને ડી નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી અમે નવા વિડીયો મૂકીએ એની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. બરાબર, તો વિભાગ સી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાકરણ વિભાગ છે. બરાબર, તો અહીંયા લખેલું છે 27મો પ્રશ્ન, મુખ में राम. बराबर, मुख में राम और बगल में छुरी. बराबर, मुख में राम और बगल में छुरी. तो कथनी और करनी में अंतर होना. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક શબ્દ સમ માટે આપેલો છે શબ્દ, તો કે એનો મતલબ થશે ઘાટી. પછી સંધિ છોડીએ તો અન્વેષણ એટલે શું થશે કે અનુ પ્લસ એષણ. બરાબર, સંધિને જોડવાનું છે તો શું થશે તો કે વિરોચિત. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો કહાવત છે સ્થાયી રૂપ સે બેઠના. બરાબર, પછી વિરોધી શબ્દ છે તપંત આવશે ઠંડક, ગુણવંત આવશે ગુણહીન. પર્યાય શબ્દ શું છે તો કે મવેશી એટલે પ્રાણી અને શિષ્ટ એટલે સંસ્કૃત. બરાબર, ભાવવાચક સંજ્ઞા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 36મા પ્રશ્નની અંદર, બદલના તો બદલાવ, ઉડના તો ઉડાન. બરાબર, કર્તૃવાચક સંજ્ઞા છે ઋણ તો ઋણી અને ડાક તો ડાકિયા. બરાબર, પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વિશેષણ છે સંજ્ઞા મખમલ તો મખમીલા, મખમલી અને બર્ફ તો બર્ફીલા. સમાસ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે પૂર્ણભૂમિ, પુણ્યભૂમિ તો કર્મધારી સમાસ અને આજીવન તો અવ્યયીભાવ સમાસ. હવે આગળ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા તમને એક જે શબ્દ છે બરાબર એના અર્થ આપવાના છે. તો ડીટીપી આપેલું છે. બરાબર, तो डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है. इसका आविष्कार से सब कंपोजिंग और सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है. कंप्यूटर पर विशेष प्रकार से सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्कार्ड लगाकर टंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है. वर्तनी जा स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित प्राणी सामग्री संशोधित की जा सकती है. હવે આગળ શું છે તો કે આકાશવાણી. બરાબર, सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था. उसकी सहायता के देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं. इससे वाणी को विशेष यंत्रों को ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है. ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, जलवायु कार्यक्रम आदि प्रसारित करती है. इसमें हमें गीत और समाचार और विज्ञापन सुनने मिलते हैं. बराबर, આગળ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તમને દેખાય છે પેરેગ્રાફની અંદર प्रश्न जवाब पहला, लेखक का हृदय कब फटता है. तो अँ जवाब आवे कि भारतीय समाज को अपनी संस्कृति के मौलिक सिद्धांत को अवहेलना करते देखकर लेखक का हृदय फटता है. बीजो प्रश्न आने अंदर से विद्यार्थी मित्रों के संसार के सारे सुख क्षणभंगुर अस्थायी होते हैं. बराबर, ત્રીજો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે, मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है. तो कि मनुष्य का चरित्र नष्ट होने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है. बराबर, तीसरा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों चौथो, कि संस्कृति का सार क्या है. तो कि संसार पर विजय पाने की अपेक्षा अपनी और आत्मा पाने का श्रेष्ठ आदर हमारी संस्कृति का सार है. उसका शीर्षक क्या है. तो गीता का संदेश और गीता और जीवन कला और आत्म सुख ही एक सच्चा सुख है. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આપેલું છે તો તમને અહીંયા એક બરાબર પત્ર આપેલો છે. બરાબર, તો તમારે એક પત્ર લખવાનો છે. કોને લખવાનો છે તો કે ભાઈ એક પોતાના મિત્રને બરાબર પત્ર લખવાનો છે. તો અહીંયા તમને દેખાય છે કે ભાઈ પ્રિય મિત્ર સુભાષ. બરાબર, તો કે हम सब यहाँ पर, तो कि हम सब यहाँ पर सकुशल है और आशा करते हैं कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारे असफल होने पर बहुत दुख होया, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत और ईमानदारी की पढ़ाई की और उसके बारे में अधिक मेहनत करना. तुम्हारे मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और जरूर सफलता मिलेगी. और तुम्हारा मित्र राकेश शाह. बराबर, તો અહીંયા સરસ મજાનો પત્ર આપેલો છે. તો ફરીથી હું તમને પત્રનો સરસ મજાનું છે. તો પહેલા શું કરવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા એડ્રેસ લખવાનું, અશોક વિલા, કુબેરનગર, રાજકોટ. બરાબર, 395 003. પછી શું લખેલું, પ્રિય મિત્ર સુભાષ. પછી નમસ્કાર, हम सब यहाँ पर सकुशल है और आशा करते हैं कि सब यहाँ सकुशल होंगे. तुम्हारी परीक्षा का परिणाम पता चला, तुम्हारे असफल होने का मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु कोई बात नहीं, असफलता तो जिंदगी का पहलू और है. तुम्हें अपनी तरफ से मेहनत और ईमानदार की पढ़ाई की है और परिणाम अनुरूप नहीं आते तो इससे निराश नहीं होना चाहिए, अधिक मेहनत करना चाहिए. तुम्हें अपना मेहनत का फल अवश्य मिलेगा
और अपनी तरफ से मेहनत और लगन से पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हारा मित्र राकेश शाह। बराबर। પછી એક જે કહાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, તો કહાની છે તો અહીંયા કહાની, બરાબર, તો કહાની અંદર આપણે જોઈએ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાની કહાની આપેલી છે, બરાબર, તો કે ભાઈ અહીંયા એક ભેડિયા અને બકરીના બચ્ચા, બરાબર, તો કે ભાઈ એક બાર क्या અહીંયા તમને कहानी હું વાંચું છું, बराबर, तो कि एक बार एक भेड़िए की नजर एक मेमने पर पड़ी जो नदी के पानी में पी रहा था। भेड़िए ने कहा कि खाने के लिए उसने तरकीब सोची। भेड़िया मेमने के पास जाकर बोला, मुझे मेरे पीने का पानी गंदा करते रहो। मेमना डर गया और बोला कि आप जहाँ पानी पी रहे हैं यहाँ का बहाव के कारण इसे गंदा नहीं, मैंने नहीं गंदा किया। तब भेड़िए ने कहा, चलो छोड़ो तो ये बताओ मुझे एक वर्ष से पहला गाली क्यों दी। मेमना डर गया और बोला कि श्रीमान, एक वर्ष से पहला मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तब भेड़िए ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे गाली दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी प्रकार भेड़िया में मुझको मैंने को खा गया, मेनका को खा गया। उसका निष्ठक, उसका सार क्या है, तो कि झगड़ालू लोग है, हमें किसी भी कोई भी कारण से वो झगड़े करने का सोच लेते हैं, बराबर। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, यदि मैं परीक्षक होता तो क्या होता, કે परीक्षक के गुण, बराबर, तो તમને દેખાય છે આ પેરેગ્રાફ ની અંદર, तो कि भाई सचमुच एक परीक्षक तलवार की धार को चलना पड़ता है। परीक्षक अपने ज्ञान और बुद्धि के साधारण प्रतिभाशाली अपने विद्यार्थी को योग्यता का मूल्यांकन करता है और वह इस काम से बड़ी सावधानी और विवेक से काम लेना पड़ता है। परीक्षा के लिए न्यायाधीश समान निष्पक्षता और संतुलित आवश्यकता रहती है। मैं कैसा परीक्षक न होता, यदि मैं परीक्षक होता तो सबसे पहले आपके आदर्श परीक्षक के सब गुणों का विकास करता। मैं इन परीक्षक की तरह न होता जो उत्तर वही इधर उधर थोड़ा बहुत देकर किसी ही सिफारिश के अंक रखते चले जाते हैं। तो मैं कैसा होता, बराबर। तो इसमें क्या लिखा है, तो कहा है कि मैं इन परीक्षकों के समान न होता जो अपने पुस्तकों में उन पुस्तकों को जांच बाई और उसका हाथ खेल समझते हैं और विद्यार्थी के किस्मत के साथ खेलते हैं। विद्यार्थी का नाम, नंबर, चेहरे याद कर अंक दिलाने वाले परीक्षा को कभी पसंद नहीं करते। अंक देते समय जो कुछ लिखा उसे देखकर मूल्यांकन करते हैं, बराबर। પછી परीक्षा का महत्व, परीक्षक विद्यार्थी का भाग्य बिताता है, उसके निर्णय विद्यार्थी के लिए वरदान अभिशाप बन जाता है। मैं यदि कभी ना भूलता, विद्यार्थी और अध्यापक के स्तर का फर्क होता है। विद्यार्थी अपनी शक्ति और समझदारी उत्तर देने वाला योग्य सीमित होती है, अतः उनके स्तर ही ध्यान ही रखकर मैं उत्तर पत्रों को जांच करता। मैं परीक्षक के रूप में विद्यार्थी का कोमल आशापूर्ण हृदय कभी चोट नहीं पहुंचा देता। उदार और न्यायी दृष्टिकोण से रखकर सदा उसे अधिकारी अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता। હવે मेरी प्रिय ऋतु, बराबर, निबंध बीजो છે मेरी प्रिय ऋतु, तो वर्षा ऋतु, तो અહીંયા વર્ષા ઋતુનો નિબંધ જે આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, बराबर। तो कि वर्षा ऋतु શું નિબંધ આપેલો છે, तो कि भाई भारत की सभी ऋतु में वर्षा ऋतु अनुरूप ऋतु है। संसार के बड़े बड़े कवि ने वर्षा ऋतु की काफी प्रशंसा की है, इसे अच्छी मार्मिक कविता भी लिखी गई है। यह ऋतु संसार जीवन को देती है और प्यासे को पानी देती है और माँ की तरह जीवन मात्रा का पालन पोषण करती है। भारत में गर्मी के ठीक बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इसकी प्रभाव से प्रकृति लहलहाती है। यह सूखे पौधे और पत्तियों को प्राण फूंक देती है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार से पक्षी अपने मधुर ध्वनि से उपवनों की शोभा बढ़ाते हैं। तालाब के किनारे मीटर टर टर करने लगते हैं। दुबली पतली लताएं बढ़कर फैलने लगती है और वृक्षों से लिपटने लगती है। घने जंगलों में रहने वाले मोर नाचने लगते हैं। सूखी नदियां सारी प्रकृति नया रूप धारण करके नए जीवन का स्वागत करती है। सूखी नदियां किनारे को तोड़ती फोड़ती और आगे बढ़ती है। कभी कभी किनारे के पेड़ पौधे उखाड़ पटाकर धराशायी कर देती है। इसी ऋतु में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सुमुखी धरती पर हरी चादर बिछारी हुए खेत और खलियान के बाग बगीचे ताल तलिया और आहार पोखर सभी पूरे हुए उठते हैं। वर्षा का स्वागत औरतें इंद्र भगवान की पूजा करती है। कदम के डालियों पर झूले लगाकर झूलती है तथा कजली लावनी और हिंडोला गाती है। आकाशवाणी मेघों से भर जाता है। कभी कभी बादल चीरकर बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। जब वर्षा की नानी बूंद छोटे बड़े और
पत्ते गिरती है तो ऐसा लगता है कि मानो के मोती के हार झरते हैं। इन हवा की शीतलता और मस्ती रहती है और गांव के किसान झूम उठते हैं, उनके सुखी ओढ़ी पड़े पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ती है। वर्षा ऋतु संसार के लिए नए जीवन का वरदान रूप ले आती है। सभी जीवन प्राप्त कर और असीम आनंद का अनुभव करती है। यदि वर्षा न हो तो चारों ओर त्राहिमाम मच जाए, उसकी उपज न हो तो लोग तड़प तड़प कर मर जाए। देश में अकाल पड़ने लगे तब विद्रोही की चिंगारी फूटने लगेगी, सब आपस में लड़ मरेंगे। वर्षा का अभाव से जब पशु चारा नहीं मिलता तब उसकी हालत दयनीय हो जाती है। वर्षा ऋतु विज्ञान के लिए खुशियां लेकर आता है, उनकी फसल वर्षा के कुहाड़ के साथ ना उठती है। वर्षा का आनंद और आशा उत्साह की ऋतु है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी। यही कारण है कि सभी ऋतु का सबसे ऊंचा स्थान सभी ऋतु की रानी कहलाती। यदि न होती तो जीवन में सता ही सदा के लिए मिट जाती। स्त्री बराबर स्त्री एम के જે સ્ત્રી વિશે લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા તમને દેખાય છે કે જે સ્ત્રીકરણનું મહત્વ, બરાબર, કે ભાઈ અહીંયા આપણા સમાજની અંદર જે શું છે તો કે भाई प्राचीन युग में हमारे समाज में नारी का विशेष स्थान है। पौराणिक स्थान में ग्रंथों में नारी का पूजन है, देवी तुल्य माना जाता है। हमारी धारणा ये है कि जहाँ पर नारी जाति का प्रतिष्ठा और सम्मान दृष्टि से देखा जा सकता है वहाँ देवता निवास करता है। कोई भी परिवार, समाज, राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थ में प्रगति करता है, अग्रसर करता है जब तक नारी प्रतिभाव, भेदभाव नहीं, हीन भाव का त्याग नहीं कर सकता। स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है, सधर्मणी, अर्धांगिनी और मित्र है। किसने कहा है तो कि महात्मा गांधी ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यहाँ कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, मैथिली चरण गुप्त ने कहा है। नारी का स्थान क्या है समाज के अंदर? तो जिस समाज में नारी का स्थान सम्मान पूर्वक, नारी का स्थान समाजजनक पूर्वक, नारी का स्थान समाज जनक होता है, वहाँ उतना ही प्रगतिशील और विकसित हो जाता है। परिवार में, समाज में निर्माण के लिए नारी का स्थान सदैव रहता है। जब समाज अशक्त और विकसित होता है तब राष्ट्र मजबूत होता है। इसी प्रकार सशक्त राष्ट्र निर्माण की केंद्रीय भूमिका निभाती है। माता के स्वरूप में एक बालक ही प्रथम गुरु होती है। बोरबट हर्बट ने कहा था कि एक अच्छी माता 100 शिक्षक के बराबर होती है, इसीलिए उनका सम्मान हर हालत में होना चाहिए। अब हमारे समाज के अंदर नारी की क्या होती है, क्या स्थिति है, बराबर, उसकी जो स्थिति है ये क्या है? तो हमारे समाज के अंदर हम जो भारतीय नारी है उसकी स्थिति क्या है? तो यहाँ हमें दिखाया है कि आजादी के बाद भारतीय नारी की क्या हालत है, बराबर। तो कि भाई आजादी के बाद भारतीय नारी की हालत के, तो भारतीय नारी के साथ विरोधाभास की स्थिति सदैव रहती है, पहले भी है और आज भी है, बराबर, पहले भी है और आज भी है। यहाँ क्या कहा गया है? तो हमारे प्रार्थना और धर्म ग्रंथ में यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र श्रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का पूजनी होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देश में एक तरफ सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती रूप में नहीं, नारी देव तुल्य माना जाता है, वहीं उनका अबला और परंपरा एवं रूढ़ियों को बेड़ियों में झगड़ा जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15 અને જે અનુચ્છેદ છે, બરાબર, 3, 15, 3, 16, 2, 25, 39 ક, 39 ક, 39 એવી રીતે જે કલમ આપેલી છે એ अधिकारी को विविध रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी अशक्तिय भारत सरकार का एक जो सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चालू की है उसमें जननी, अबला जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली, बेटी बचाओ और तेजस्विनी जैसी योजनाओं सफल संकल्प किया जा रहा है और सभी राज्यों में जो प्रतिष्ठा के लिए यह कदम बढ़ाया जा रहा है। नारी का सशक्तिकरण का बढ़ावा, तो कि नारी क्या है? तो कि नारी सशक्त बनाए और हम मानवता के सशक्त नहीं बन सकते, इसीलिए संवेदना, करुणा और ममता और प्रेम के उसके गुण है। इसमें से हमें उपसार क्या मिलता है? तो कैसे स्पष्ट है कि भारत की शताब्दी में पराधीन के कारण महिला भी समाज में वह स्थान प्राप्त करे और उनसे मिलना चाहिए। और दहेज की वजह से कितनी बहु बेटियों की जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ हमें नारी का भी जो देखा
जो निबंध हमने पढ़ा विद्यार्थी मित्रों अहींया जे सोल्यूशन पूરું થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગલા વિડિયોમાં મળશું. થેન્ક યુ સો મચ.